ابھی انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی دنیا ہم سے ہماری مدد اس لیے نہیں کرتی. حکمران انہوں نے کہا کہ جناب اس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. خان صاحب نے کہا کہ مجھے لوگ بلوا کر, تقریبوں میں بلوا کر ڈونیشن دیا کرتے تھے کہ آپ جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. تو سر آئی ایم ایف میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اگر حکومت مل جاتی ہے تو؟ کنفرم ہے یہ؟ دیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جس طرح پہلے بھی پاکستان کو ایک بحران سے نکالنا تھا عمران خان صاحب نے, اسی طرح ہم لوگ پھر حکومت جب آتی ہے اور اس پر آپ دیکھیں گے کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ, سادہ اکثریت نہیں 2/3 اکثریت انشاءاللہ تعالیٰ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے. پنجاب کی ایگزامپل آپ دیکھیں, کے پی میں انشاءاللہ کلین سویپ ہوگا, بلوچستان انشاءاللہ بڑا زبردست ہوگا, اور سب سے بڑا سرپرائز آپ کو سندھ سے ملے گا. یہ پیپلز پارٹی کا جو گاڑی سمجھتے ہیں یہ انشاءاللہ نہیں رہے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ بہت ساری سیٹیں اربن سے یا شہری, غالباً 14 سیٹیں تو تھیں ابھی نا میرے خیال سے. بالکل ہماری تھی, کراچی میں ہماری تھی, اور مزید ہم لوگ لیں گے سندھ میں انشاءاللہ. لیکن کراچی میں آپ نے زیادہ تر جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ جہاں سے جیتی تھی وہاں سے آپ کو کافی زیادہ پذیرائی ملی, وہاں سے آپ نے سیٹیں نکالی. اندرون سندھ سے آپ نکال لیں گے زبا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب بھی اندرون سندھ آئے تھے, انہوں نے بھی جناب خطابات کیے تھے, انہوں نے بھی جناب ایک پوری کمپین چلائی تھی. تو کیا رسپانس ملا تھا؟ زبردست تھا. بڑا زبردست رسپانس تھا. دیکھیں ابھی عوام بیدار ہو گئی ہے, نوجوان بیدار ہو گئے. ان کا جو یہ سیاسی پارٹیاں جو دوسری ہیں, یہ 13 جن کو میں یہ سرکس کہتا ہوتا ہوں, یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کے انوائرمنٹ میں یا اس ماحول میں الیکشن لڑ رہے ہیں. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, ابھی یوتھ آ گئی ہے, بہت نوجوان آ گئے. تو عمران خان صاحب کا میسج جو ہے وہ ہر جگہ پہنچا ہوا ہے. ابھی میں جب آ رہا تھا اس پروگرام کے لیے, میں نے اپنا کمپیوٹر آن ہی کیا تو باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ عمران خان صاحب کی تقریر ہی سن رہے تھے. تو ان کے ساتھ میں کھڑا ہو کے تقریر ان کی فون پہ میں سن رہا تھا. تو مطلب لوگوں کا آپ جوش و جذبہ ہی نہیں سمجھ سکتے کہ کتنا ڈیپ روٹڈ ہے, کتنا یہ طے پہ کیا ہوا ہے. لوگوں کے دلوں میں عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ جا رہی ہے, اور اس کی بات کیا ہے, عمران خان صاحب کیا چیز لوگوں کو دے رہے ہیں. وہ لوگوں کو عزت کے بارے میں بات کریں, وہ ارادیت کے بارے میں بات کریں, اور وہ جو ہے باقی پارٹیاں وہ دے رہے ہیں کہ جی ہم لوگ غلام ہیں, ہم لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں, ہم لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم لوگ آزاد مملکت خدا داد پاکستان ہے. اور لوگ جو ہے وہ خوب برداشت کر لیں گے, پر عزت سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا انشاءاللہ. عمر عیسیٰ صاحب, آج میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ سن رہا تھا. انہوں نے ذرا جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے اسپیچ کی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے یا جناب حمزہ شہباز شریف صاحب بنے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی انہوں نے اداروں کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی, جو بھی الفاظ استعمال کی, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن جناب انہوں نے یہ بات کی کہ کوئی بھی دونوں سے بنے مجھ سے کوئی فرق نہیں ہوتا, لیکن جینون طریقے سے بنے. سر اگر فرق نہیں پڑتا تھا, زرداری صاحب چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر میں 3 دفعہ گئے, 4 5 گھنٹے کی نشست لگائی, یہ کس مقصد کے لیے تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ چلے میں شروع کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے. ایوب خان صاحب کی گود میں انہوں نے سیاسی ہوش سنبھالا اور ان کو ڈیڈی کیا کہا کرتے تھے. پھر جنرل یحییٰ صاحب کے ساتھ وہ ان کے ساتھ آپ سمجھے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے, ان کے فارن منسٹر رہے جنرل یحییٰ صاحب کے ساتھ. اور جو یونائیٹڈ نیشن میں بھٹو صاحب نے تقریر کی تھی وہ ان کے حیثیت فارن منسٹر اس ملٹری گورنمنٹ کے تھے. اور اس کے بعد پاکستان کے پہلے مارشل لاء سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب, تو ان کا تو ماشاءاللہ فوج کی گود میں ہی وہ پلے ہیں. تو وہ یہ کسی کو نہ بتائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور زرداری صاحب اور ان کی آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ڈی ایل زرداری صاحب نہ کرتے تو یہ بن سکتے تھے, یہ ان کی گورنمنٹ اس وقت بن سکتی تھی. یہ کسی اور کو بات کریں, ہمارے ساتھ یہ بات نہ کریں. اور جہاں تک ابھی بھی بات ہے, یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ جو رپورٹڈ آئی ہے تو بیرونی آقاؤں کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کر کے آئے. میں دیکھتا ہوں کس طرح بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں, ان میں داخلہ یہ چلتے ہوئے کارکن ایک لمحے کے لیے سر اس آرگومنٹ کو ہم تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں یہ آرگومنٹ ہے, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں صحیح اور غلط
دونوں آرگومنٹ ہو سکتے ہیں, کسی کی رائے آپ سے مختلف ہو سکتی ہے, زیادہ تر کی آپ سے اتفاق بھی کر سکتی ہے, لیکن سر اگر بیرونی آقاؤں کے والے سے ان کو آئی ایم ایف سے ڈیل کیوں نہیں ملتی, کیا وجوہات ہے پھر ڈیل, کیونکہ اگر وہ تو ان کی تو خواہش مند جیسا نا آپ ہمارے بندے ہیں چلے ڈیل مل جاتی ہے, کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ آئی ایم ایف دیکھیں وہ بھی تو بچے نہیں ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے پیسہ یا دے دیا یا کوش کیا دے دیا تو یہ تو کھاؤ پیو سرکار ہے, انہوں نے اپنے فورن بینک بیلنسز بڑھانے, انہوں نے وہ خرچیاں کرنی ہے, انہوں نے پیسہ اڑا کے رکھ دینا ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں سوئمنگ پول کے لیے انہوں نے اخراجات کرنی ہے پر لوگوں کو سبسڈیز دی دی ہے. تو ابھی یہ ماشاءاللہ وہاں پہ جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سوئمنگ کریں اور باقی بھی لوگ وہاں پہ سوئمنگ کریں جو سوئمنگ پول میں انہوں نے اخراجات کیے. یہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, یہ صرف محض باتیں, یہ صرف اور صرف اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے, اور لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, اعتبار نہیں کرتے ہیں, بنیادی طور پر یہ مسئلہ. اچھا کچھ لوگ سر ایک آرگومنٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں, اب تو آپ کے پاس بہترین, آپ اس وقت ڈرائیونگ پوزیشن پر آ گئے, نا آپ بارگننگ پوزیشن سے ہٹ کے ڈرائیونگ پوزیشن پر آ گئے. اب آپ بارگننگ نہیں کر سکتے, آپ کہیں جناب پنجاب اسمبلی توڑتے ہیں, کے پی توڑتے ہیں, بلوچستان توڑتے ہیں, تمام, وہ وفاق سروائیو کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ ایسا آج کیونکہ آپ لوگوں کا اجلاس بھی ہوا تو آپ لوگوں کی کوئی ایسی تجویز زیر غور آئی؟ ہم پہلی بات یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کا مین چیز ہمارا جو ہے وہ ہے وفاق کی نیشنل اسمبلی کا الیکشن کرے. پروونشل اسمبلی ڈرتی رہے اس وقت, وہ اپنے ٹائم پہ جائیں, یا پھر جب بھی خان صاحب کہیں اس وقت وہ توڑ سکتے ہیں, پر وہ تو ٹریگر خان صاحب کے پاس ہے. پر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ وفاق کا ہے. صورتحال ہے. زاہد فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. زاہد فاروق بتائیے گا, کہا جاتا ہے, ایسے کہتے ہیں کہ جناب اسلام آباد والے جلدی سو جاتے ہیں, آج تو یوم تشکر ہے, جشن منایا جا رہا ہے, اسلام آباد میں لوگ جاگ رہے ہیں, سو گئے یا پھر جشن منا رہے ہیں؟ جی بالکل, خان صاحب میں ایف لائن پارک میں موجود ہوں. خان صاحب کی تقریر ختم ہوئے کافی دیر ہو گیا, لیکن اگر آپ دیکھیں ایف لائن پارک میں ابھی بھی اسی طرح کا منظر آپ کو نظر آئے گا. بہت بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے ابھی بھی ایف لائن پارک کے اس پنڈال کے اندر موجود ہیں. بات کرتے ہیں جو شرکاء ادھر آئے ہیں. بچی ایک آئی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ بس میں کہتی ہوں کہ عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا, اور اس پہ ان سب قوتوں نے اس کو ہٹا دیا تھا. اب مجھے لگتا ہے جیسے پاکستانی عوام نے ان سارے لوٹوں کو ایبسلیوٹلی ناٹ ان کے منہ پہ دے کے مارا ہے. اور میں عمران خان کہتی ہوں کہ اس کے خلاف جتنی بھی قوتیں اکٹھی ہو جائیں نا, وہ کہتے ہیں وہ کلہ ہی کافی ہیں, وہ عمران خان اس طرح کا بندہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے مٹھائی بھی بڑی رکھی. میں ایکچولی مٹھائی کا پورا ٹوکرا لے کے آئی تھی, ماشاءاللہ یہاں تک آنے تک ختم ہو گیا ہے. اب کہنا آج کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہیں. میں تو کافی آتے انٹرویوز دے چکی ہوں, لیکن بس انشاءاللہ وی ہیو اور ہوپس ہائی کہ ہمارا کپتان از کمنگ بیک ویری سون انشاءاللہ. کہتے ہیں جی ہمارا کپتان کمنگ بیک سون. بات کرتے ہیں, آپ بھی پہلے اٹھا کے لائے ہیں, کیا کہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے خان صاحب نے کہا کہ ہم کا بہت بڑا یہ پلان بن رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو موبلائز کروں گا, اور اس ملک کی بقا میں اور فلاح میں ان کا بہت حصہ ہوگا. تو یہ بینر آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں اوورسیز پاکستانیز کی طرف کو پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد ہم دے رہے ہیں. اور میں سارے اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے خان صاحب کو وعدہ کرتی ہوں کہ خان صاحب آپ کال دیں, جیسے پاکستانی لوگ نکلتے ہیں ویسے ہی اوورسیز پاکستانیز بھی آپ سے پیار کرتے ہیں, اور اس ملک کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. جی بالکل, کہ میں بھی اوورسیز پاکستانی ہوں, میں برٹش پاکستانی, اور خان صاحب کو انشاءاللہ الیکشن جتوا کے واپس جائیں گے. اگر ہمیں حق دے دیا ووٹ کا کہ ٹھیک ہے جناب, ووٹنگ کر سکتے ہیں. لوگوں کے جذبات آپ سن رہے ہیں جناب. ان کے والہانہ محبت خاتون ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں کلہ ہی کافی ہوں. خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ اکیلے ہی کافی ہیں. انہوں نے پہلے امریکہ کو کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ, اور اب انہوں نے اپنے مخالفین کو بھی یہ بات بولی. ایک بریک لیں گے جناب, عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
फीमेल काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि फलां बंदा वोट दे सकता है या फलां वोट नहीं दे सकता? डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है, बड़ी अदालत है। हक सच दा बोलबाला है। सरदारी जमीरां दा सदागर नाकाम होया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि फतह हमारी हुई। इमरान खान जिंदाबाद। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स जो दे आपको शाइनी, घनी और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। नेस्ले बुनियाद नए आयरन प्लस के साथ जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। कमाल की गर्मी है यार। कट ले, चल चल भाग। उफ, रहने दे, तू ना भाग पाएगा। तू गर्मी भगा, ठंड रख। स्प्राइट। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ चमके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स जो दे आपको शाइनी, घनी और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। यार क्या मौसम है। तो चाय पियोगे? ऐसे मौसम में नहीं कह सकता हूँ। हाँ पिक कर ले यार। अच्छा हाँ ठीक है। उठा लो। आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते? समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। अरे आयजा, घर में दावत है। बाकी सब चीजों की तरह कमोड तो चमक रहा होगा। बिल्कुल, सफाई के लिए डिटर्जेंट और पीलेपन के लिए तेजाब जो इस्तेमाल करती हूँ। मैडम, तेजाब सफाई कम बहता ज्यादा है, इसलिए जंग, पीलापन और जरासीम छोड़ जाता है। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। ये तो मान गई, अब आपकी बारी। बस जिंदगी बर्बाद हो गई। जब से अम्मी ने कमोड नूडल्स इसमें लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या। छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से। अब हर दिन तुम्ही से नेस्ले मिल्क पैक क्रीम की रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर। अब हर दिन खुशी से। ग्रो हैप्पी। बच्चों का खेलना, कूदना, पढ़ना फ्यूल होता है उनकी टमी से। ग्रो हैप्पी, ग्रो हैप्पी, लैक्टोग्रो से ग्रो हैप्पी। नेस्ले लैक्टोग्रो में मौजूद कंफर्टर्स ग्रो बच्चों के पेट को रखे महफूज, पुरसकून और इनके हाजमे को बेहतर बनाने में मदद करे। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। फुटबॉल समर कैंप जा रहा हूँ। बेटा, ऐसे मौसम में? अरे कुछ नहीं होता, जाओ जाओ।
तुम दोनों से क्यों जाने दे रहे हो? गर्मी की बारिशों में बीमार ना पड़ जाए। प्रैक्टिस नहीं तो ट्रॉफीज नहीं पड़ेगा बीमार। हम रोज डेटॉल सोप से नहाते हैं। सख्त गर्मियों और बारिशों के साथ आती हैं कई बीमारियां और इन्फेक्शन। सिर्फ डेटॉल सोप का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। अरे चाय का ही सोच रही थी। नेस्ले एवरीडे। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। मान गई हार्पिक 10X। ये तो मान गई। अब आपकी बारी। वो क्या है जो सिरोलैक नेचर सिलेक्शन को ग़िज़ाइयत से इतना भरपूर बनाता है? लम्हा लम्हा कुदरत पे ज़ायद भरती है इन खास फ्रूट्स में, ओट्स और किनवा के दाने दाने में। ये है विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर, प्रिजर्वेटिव से पाक नया सिरोलैक नेचर सिलेक्शन। नेचर्स गुडनेस फ्रॉम नेस्ले। बस जिंदगी बर्बाद हो गई जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है। सब बदल गया। खाना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या? अम्मी, आपके पुराने फोटो पे 250 लाइक्स। आपके बाल इतने लंबे और अच्छे कैसे थे? तुम्हारी नानी है ना, मेरे बालों में मजबूती के लिए कुदरती जड़ी बूटियां लगाती थी। मेरे लिए सब नहीं। क्यों नहीं? लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू। इसमें है सिकाकाई, रीठा और आंवला। लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, मजबूत लंबे बाल। ग्रो हैप्पी। बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना फ्यूल होता है उनकी टमी से। ग्रो हैप्पी, शाला, ग्रो हैप्पी, शाला, लैक्टो ग्रो से ग्रो हैप्पी। नेस्ले लैक्टोग्रो में मौजूद कम्फर्टस ग्रो बच्चों के पेट को रखे महफूज, पुरसकून और इनके हाजमे को बेहतर बनाने में मदद करे। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से। अब हर दिन तुम्हीं से। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम की रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर। अब हर दिन खुशी से। बस जिंदगी बर्बाद हो गई जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है। सब बदल गया। खाना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या? ग्रो हैप्पी। बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना फ्यूल होता है उनकी टमी से। ग्रो हैप्पी, शाला, ग्रो हैप्पी, शाला, लैक्टो ग्रो से ग्रो हैप्पी। नेस्ले लैक्टोग्रो में मौजूद कम्फर्टस ग्रो बच्चों के पेट को रखे महफूज, पुरसकून और इनके हाजमे को बेहतर बनाने में मदद करे। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। पीएमएल काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि फलां बंदा वोट दे सकता है या फलां वोट नहीं दे सकता? डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है, बड़ी अदालत है। हक सच दा बोलबाला है। सरदारी जमीरां दा सदागर नाकाम होया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि फतह हमारी हुई। इमरान खान जिंदाबाद। जनाब एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर नुमाइंदगान भी इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आज यौम तशक्कुर है। लोग बाहर निकले हुए एंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं
खुशियां बांट रहे हैं, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि जनाब उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये खान साहब की बदौलत उनको एक बड़ी कामयाबी इस तरह से मिली है कि जनाब पंजाब में अब खान साहब की हुकूमत आ गई। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि काफली के ज़र से परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन चुके हैं। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं अपने नुमाइंदगान की तरफ भी जाऊंगा। उमर अयूब साहब ये बताइएगा सर, ये 2 हफ्ते के रिजर्व गालिबन अब रह गए हैं, 2 हफ्ते बाद अगर मैं आपसे पूछूं खादम बनहन क्या होने जा रहा है सर? आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह, आप खुद सोच लेंगे क्या होगा। मतलब बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी कंडीशन नहीं होगी, खुदा न खास्ता। तो सर ये तकरीबन 10 दिन पहले शौकत तरीन साहब मेरे साथ मौजूद थे सर, आप ही की पार्टी से ताल्लुक उनका है, जाहिर सी बात है वज़ीर ख़जाना भी हो रहा है। वो ये कह रहे थे कि डिफ़ॉल्ट तो खैर नहीं करेगा, इतना तो उन्होंने श्योरिटी के साथ कहा, लेकिन उस वक्त जो रिजर्व मौजूद थे जब मैं उनके साथ प्रोग्राम कर रहा था तो वो तकरीबन शायद 4 से 5 हफ्ते के थे। अब तो 2 हफ्ते का सीन हो गया मेरे ख्याल से, शायद आप वो भी ये कहते हैं कि अल्लाह ना करे कुछ हो सकता है। मैं पब्लिकली इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। अच्छा। बहुत हालात खराब है, ठीक है, डॉलर को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं सर? उधर मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, कोई मसला नहीं है सर, इट्स टोटली अप टू यू। डॉलर को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? आज तो 230 का गालिबन रेट आया हुआ है, 232 का आया हुआ है, तो ये तो एलसीज तो 270 तक की गालिबन बता रही है। बिल्कुल जा रही है और मजीद बढ़ेगी जितनी जितनी आपकी आर्गुमेंट ये भी तो है ना सर, अगर आज लेट सपोज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं चले भाई असेंबलियां तोड़ दी, पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे, मैं सूबाई और कौमी दोनों को मिला के बात करता हूँ, फ्रेश मैंडेट होता है, कल हुकूमत आ जाती है सर, ये 2 हफ्ते के रिजर्व, वैसे तो 3 महीने तो केयर टेकर के हुकूमत के पास भी होते हैं, इलेक्शंस होंगे उसके बाद आएगा, ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन चले मैं कहता हूँ परसों नहीं हुकूमत आ जाती है, फ्रेश मैंडेट आ जाता है सर, ये 2 हफ्ते के रिजर्व से निकलने के लिए आपको या किसी भी दूसरी जमात को जो हुकूमत बनाएगी उसको टाइम तो लगेगा ना सर। ये सूरत हाल इतनी जल्दी वाइंड अप होती हुई नजर तो नहीं आ रही। 2018 में इसी तरह की मैशत हमें विरसे में बिल्कुल से भी अब तक थी और वो हमने मतलब ये जो हाल अब भी है इससे भी मतलब सिचुएशन जो है वो रिजर्व की पोजीशन खराब थी, वहां से हमने उस चीज को उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेहतरी की तरफ ले गए और बावजूद इसके कि दुनिया में कमोडिटी साइकिल भी आया हुआ था, सुपर साइकिल, और कोविड भी था, उसके बावजूद भी 6% ग्रोथ रेट हमारी आई, हमने मईशत को संभाला दिया। इन लोगों की न नीयत ठीक है और न इनको तरीक़ाकार आता है काम करने का। ठीक है, अच्छा सर एक आर्गुमेंट और भी था ना, जब आपकी हुकूमत आई थी 2018 में 128 का डॉलर था, 175 178 तक गया था, लोग इस पर काफी ज्यादा तनकीद करते थे, बात करते थे कि जनाब देखिए खान साहब की हुकूमत आई और डॉलर कहां से कहां चला गया, इतना ऊपर चला गया, लेकिन खान साहब ने एक दफा कहा था या आप लोगों ने वैसे किसी ने कहा था कि जनाब ये 200 सवा 200 250 तक जा सकता था लेकिन हमने उसको होल्ड किया, तो ये ऐसी ही सूरत हाल बन रही है भी, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, ऐसा ही है? नहीं, आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होती हैं, आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना पड़ता है, ये लोग वो कर नहीं पा रहे। हमने तो पॉजिटिव चीजों से रेवेन्यू बढ़ाया, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, इन चीजों से हमने ये रुपये की वैल्यू को बेहतर तरीके से मैनेज किया था और महंगाई पे भी हमने कंट्रोल किया था। पेट्रोल की कीमत 4 रुपए बढ़ गई तो वो काम पे टांगने वाली सरकार जो है वो कराची से इधर आ गई, तो अभी वो फॉरेन मिनिस्टर है वो काम पे टांगने वाली सरकार, तो वो मैं पूछता हूँ कि अभी महंगाई तारी क्या? चले सर, दुआ कर सकते हैं, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, सूरत हाल में बेहतरी आ जाए, जो कि आती भी फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन जाहिर सी बात है हम अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं, मुहिब्बे वतन लोग हैं, पेट्रियोटिक हैं, तो हम चाहेंगे कि जनाब पाकिस्तान में बेहतरी आए, कोई मुआवजा हो जाए जिससे बेहतरी आ जाए। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और पूरे मुल्क में इस वक्त जश्न की सूरत हाल है, जश्न की सूरत हाल इस वजह से क्योंकि जनाब पंजाब में गुज़िश्ता रोज बड़ी कामयाबी मिली, रात के 2 बजे शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ होगा कि रात के 2 बजे किसी वजीर आला ने अपने ओहदे का
हल्फ उठाया है। तो जनाब दो शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमत। वफाकी दारुल हुकूमत से जनाब जाहिद फारूक मौजूद हैं और लाहौर के यानी सूबाई दारुल हुकूमत से हमारे पास मोइन जुबैर हमारे साथ मौजूद है। मोइन जुबैर बताइएगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, रात मजीद गहरी हो रही है, लोगों का रश बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लोग घरों की तरफ जा रहे हैं? सलमान, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पर कि लिबर्टी चौक किसी तरह भी खाली हुआ हो। 6:30 बजे से हम यहाँ पर आए हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उस वक्त से लोगों की जो आमदोरफ्त है, लोगों की जो तादाद है, उसमें बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है। लोग यहाँ पर ख़ास तौर पे हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ और हमजा शहबाज का जो नाम रखा गया है तहरीक इंसाफ के इन वर्कर्स की तरफ से, उसको दोहराया जा रहा है। और ख़ास तौर पे हमने देखा है यहाँ पर मुर्गी की आवाज़ में एक गाना लगा और मुर्गी की जो साउंड होती है उस पर मबनी एक सॉन्ग था, उस पर यहाँ पर कारकुनान ने रक्स किया और ये रक्स जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। आपको अभी भी अगर कैमरामैन रियाज साहब कैमरे के मनाज़िर दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि लिबर्टी चौक का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर वर्कर्स ना खड़े हुए हों। यहाँ पर ढोल बजाए जा रहे हैं, यहाँ पर आतिशबाजी भी इस वक्त की जा रही है। और रात के ये बताइएगा, ये लिबर्टी चौक है और ये काफी एक बड़ी जगह, क्योंकि ये कज़ाफी स्टेडियम से कुछ फासले पर है, यहाँ पर जश्न का माहौल होता है। चाहे कोई टीम, जैसे अब इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई थी तब लोग यहाँ पर निकल कर आते हैं, जश्न मनाते हैं। यहीं पर एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ था श्रीलंकन टीम के साथ, और अब अल्लाह का शुक्र है यहाँ से अच्छी खबरें ही आती हैं, जश्न मनाते हैं लोग, आते हैं लोग। लेकिन खान साहब का खिताब भी हो गया, उन्होंने जो बात कहनी थी वो भी कह दी, तो अब ये किस चीज़ का इंतजार है यहाँ पर? मतलब लोग क्या एंजॉयमेंट कर रहे हैं खान साहब का खिताब खत्म होने के बाद भी? जी बिल्कुल, खान साहब का खिताब खत्म हुआ तो हमें ये लगा था कि शायद ये वर्कर्स यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन खान साहब के खिताब के बाद भी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि ये लोग जश्न मना रहे हैं, जश्न इस चीज़ का जिसके लिए इन लोगों ने जद्दोजहद की। और आज पंजाब की जो वज़ारत आला है वो तहरीक इंसाफ के नामज़द वज़ीर आला के पास पहुँची है, यानी कि परवेज़ इलाही के पास। और आपको जो सामने स्टेज के मनाज़र है वो भी दिखाएंगे कि सिर्फ हमें नहीं बल्कि जो मरकज़ी स्टेज है वहाँ पर भी अभी भी इस वक्त अभी जो कायदीन है वो मौजूद है। जबकि इनके बिल्कुल सामने अगर देखें तो ये गाड़ियाँ आ रही हैं और ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, और ये आपको मालूम हो रहा होगा कि लोग अभी भी कलमा चौक से लिबर्टी राउंड अबाउट की तरफ आ रहे हैं और झंडे थामे अपने बच्चों को गाड़ियों की छतों पर बिठाए ये लोग इस जलसागाह में, इस लिबर्टी चौक में पहुंच रहे हैं। और ये तो कोई कायदीन में से कोई खिताब विताब करेगा भी इस वक्त? कोई खिताब मुतवक्के है इस वक्त? जी सलमान, यहाँ पर वक्फे से स्टेज से जो है वो खिताब किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जुबैर खान न्याजी इस वक्त खिताब अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने किया, और अब पिंडाल जो स्टेज मरकजी स्टेज है वहाँ पर कायदीन मौजूद है। और मेरे सामने मैं अभी देख रहा हूँ MM आलम रोड से भी इस वक्त ट्रैफिक जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट की तरफ आ रही है। और ये जो एरिया है ये कलमा चौक का एरिया है, यहाँ से लिबर्टी चौक की तरफ लोग आ रहे हैं और इन लोगों में ज़्यादा तादाद जो है वो फैमिलीज की है। इनमें ज़ईफ लोग भी आए हैं आज के इस यौम तशक्कुर पर। बिल्कुल फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, और फैमिलीज आके यहाँ पर जश्न मना रही हैं, क्योंकि जश्न मनाने का इनका एक माहौल है, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। तो जनाब जाहिद फारूक हमारे साथ मौजूद है, लाहौर इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद बात करेंगे। जी जाहिद, बताइएगा, 12 बज रहे हैं, लोग हैं अभी भी या जा रहे हैं घरों की तरफ? जी बिल्कुल F9 पार्क में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त मौजूद हैं, और अभी नहीं लग रहा ऐसा कि इनके जल्दी जाने का मूड भी नहीं है। बात करते हैं रामी, अभी तक आप इधर मौजूद हैं?
हाँ जी, हम अभी तक इधर मौजूद हैं और मैं इस कौम को ये कहूँगी कि जिनकी आंखें अभी तक बंद हैं वो अपनी आंखें खोल लें, क्योंकि हमने अपना मुल्क बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल किया है और इमरान खान जब वापस अपनी सीट पर आए तो वो इस पाकिस्तान का मुकद्दर, इस पाकिस्तान का नसीब बदल दे, क्योंकि इस मुल्क का मुकद्दर और इमरान खान की, पाकिस्तान की जीत इमरान खान की जीत है। और अगर लोग समझते हैं कि जो भी इसके खिलाफ है कि वो अकेला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ी ज़ात अल्लाह की है और नीचे उसके साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी है। तो इमरान खान को गिराने से पहले वो ज़रा 100 दफ़ा सोच ले कि वो गिरा नहीं सकते उसको। आपने कोई शेर याद किया, कौन सा शेर सुनाएंगे आप? मैंने इकबाल का शेर आज तक सिर्फ तहरीरों में पढ़ा था कि इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पर जब इमरान खान की मैंने जीत देखी ना उस दिन, तो मैंने सच में कहा कि जो मोहम्मद से वफा करता है ना, अल्लाह सच में उसके हाथ में लोहो और कलम रख देता है, कहते हैं मेरे बंदे लिख अपनी तकदीर। और इमरान खान की तकदीर में जीत है और मुझे ईमान, मेरा ईमान है कि हम सारे अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं ना तो उसे कोई ताकत नहीं हरा सकती। यही कहना है कि अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो कोई ताकत नहीं हरा सकती। आप भी कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बच गया था। बिल्कुल, बच्चा ये था कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट हैं और बहुत ही फ्लरिश कर रहे हैं अमेरिका में, एंड आई एम एन अमेरिकन पाकिस्तानी। तो खान साहब को पैगाम ये देना चाहूँगी कि खान साहब, आप जो प्लान बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक प्लान बना रहे हैं। आप हमें कॉल दें, आप हमें आवाज़ दें, ना सिर्फ हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे बल्कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे पूरी जान तोड़ कि पूरी दुनिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मोबिलाइज़ करें। और ये जो IMF की लानत हमारे सर पे सवार है, ये जो कर्जा हर साल जो हमारे ऊपर इतना बड़ा उसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, इससे हम पाकिस्तान की जान छुड़ाएं इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान की कर्जों से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कारकुन लोटा साथ दे गया है। क्या आप ये नया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह सबसे मेरा जो दोस्त है जहांगीर तरीन साहब, ये बागत है, मैं उसके रस्सी के साथ बांध देता हूँ। ये बागत, ये तो वो सबसे महंगा है, 1 अरब रुपए का लोटा है। इंशाल्लाह अब इसको मैं रस्सी पे बांध दूँ, ये मुझसे नहीं भाग सकता। इसकी जगह इंशाल्लाह, इसकी जगह मैं वॉशरूम में। जी, रात के स्पेयर और भी हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं। कोई बात करना चाहेगा? मरियम का पापा, सारा टब्बर ही चोर है, सारा खानदान चोर है। जो भी सीरियल है, अभी यहाँ पर अब लाइट भी बंद कर दी है, लेकिन हम अपनी लाइट के साथ मौजूद हैं। क्या कहें? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान इलामा इकबाल का एक शेर दोहराते हैं कि जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। जिस तरह अल्लाह पाक की कुदरत और नुसरत इमरान खान के साथ है, देख रहे हैं आप कि इस शिद्दत के मौसम में लोग शदीद हब्स में भी इमरान खान का साथ देने के लिए आए हुए हैं, और मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद सरगोदा से इस फंक्शन में हाज़िरी के लिए आ जाऊँ। तो अल्लाह पाक हमारे कप्तान को कामयाब करे और इस मुल्क का मुकद्दर बदले। आप रात के स्पेयर क्या मैसेज देंगे अपने कैप्टन? पहले तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें एक हजूम से कौम बनाया। उसके बाद मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिस माँ ने उसको जना, उसको सलूट पूरी कौम की तरफ से, और पूरी अजीम अदलिया का जिन्होंने इस कदर ईमानदारी से और न डर हो के इस फैसले को हम तक पहुँचाया। और उसके बाद सबसे अहम मोन सलाही, मैं समझती हूँ इमरान खान के बाद अगर कोई हमारी इस टीम में लीडर है तो वो मोन सलाही है। मैं ख़ुद बेसिकली गुजरात की हूँ और मेरा ये मानना है कि गुजरात वाले लोग बड़े वफादार होते हैं, और मोन सलाही ने ये बात बिल्कुल प्रूव की है। और मैं समझती हूँ कि हम सबको इस वक्त एक पूरी ताकत बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर किसी का साथ है इमरान खान के साथ, तो ये हम सब पूरी कौम का साथ है। अल्लाह हम सब लोग को ठीक है जनाब, लोगों के जज्बात आप सुन रहे थे, मुख्तलिफ शहरों में जश्न मना रहे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से आपको अपडेट कर रहे थे, और उमर अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जाहिद फारूक, मुइन जुबैर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लोग इस पहर भी
जनाब बाहर निकले हुए हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको लग रहा है कि एक बड़ी कामयाबी उनको मिली है और खान साहब की हुकूमत दोबारा आएगी, ये उनकी मानना है, उनका सोच है। और इस वक्त ज़ाहिर सी बात है लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक तवील अरसे बाद लोगों को ये खुशी देखने को मिली है। पंजाब में जनाब वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इस वजह से वो बाहर निकल कर, ना सिर्फ पंजाब में, पंजाब के शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे मुल्क में जनाब जो मुख्तलिफ शहर हैं, चाहे वो सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, केपी है, हर जगह पर शहरों में लोग बाहर निकले में वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यौम तशक्कुर आज मनाया जा रहा था और इस मौके पर खान साहब ने खिताब भी किया, कई बातें उन्होंने की और आज उस बात को उन्होंने दोहराया कि उनका जो गोल है वो अल्टीमेट इलेक्शंस की तरफ फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स जो दे आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। नया सर्फ एक्सेल अब एक नए अंदाज में जो करे सख्त दाग दूर और अपनी सॉफ्ट पर टेक्नोलॉजी के साथ रखे कपड़ों की नरमी भरपूर। सर्फ एक्सेल, सख्त दाग दूर, नरमी भरपूर। बस जिंदगी बर्बाद हो गई जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको टच में देना शुरू किया है। सब बदल गया। पाना बहुत ही यमी है।